اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you students? Hope you people are fine. Class 5. Today I am going to teach you Islamiyat and that chapter number 5, Adab Tilawat. First of all, I tell you what is the Adab Tilawat. اداب کہتے ہیں کسی بھی طور طریقے کو، یعنی کہ جو ہم طریقہ اپنائیں گے تلاوت قرآن پاک کرنے کا، اس کو کہتے ہیں اداب تلاوت. فرسٹ آف آل مقاصد ہے ہمارے پاس لفظ قرآن پاک کے معنی سے آگاہی دینا. قرآن پاک کے معنی کیا ہیں اس سے ہم لوگوں نے جاننا ہے. نمبر 2، اداب تلاوت سے آگاہی دینا، یعنی کہ اداب تلاوت کرنے سے کہ کیسے ہم تلاوت کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل، کیا آپ جانتے ہیں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہمارے پاس ہے انسان. جی اسٹوڈینٹس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلے ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. جی اسٹوڈینٹس، تعارف ریڈ کریں گے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی. یعنی کہ سب سے پہلے تعارف میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. لفظ قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، یعنی کہ قرآن کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. قرآن کا معنی ہے ہمارے پاس کہ وہ ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا. قرآن پاک میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کم ٹو دا نیکسٹ پیج. قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے. اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ان کے اگر ہم ایک ایک حرف پڑھیں گے تو اس کی تلاوت پر ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے. اس کے پڑھنے کے مخصوص آداب ہیں، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے ایک پاک کتاب ہے، اس کے ہمیں آداب بتائے جا رہے ہیں، اس کے خاص آداب ہیں. جی اسٹوڈینٹس، آداب تلاوت ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد الہی ہے لا یمسہ الا المطہرون. ترجمہ، اسے قرآن کو پاک صاف لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے. یعنی کہ جو پاک صاف لوگ ہیں وہی قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں. جی اسٹوڈینٹس، کیا آپ جانتے ہیں سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے اور سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. یعنی کہ جو سورۃ پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ کتنی دفعہ آئے گی؟ 2 دفعہ آئے گی. اور سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. کہ ہم جب دوسری صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے، لیکن سورۃ التوبہ میں بسم اللہ نہیں آئے گی. سیکنڈ، کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں؟ یعنی کہ قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں. جی اسٹوڈینٹس، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹس. آداب تلاوت، کیا کیا ہم آداب طور طریقے اپنا سکتے ہیں قرآن پاک پڑھتے وقت؟ نمبر 1 پہ ہے آپ لوگ کے پاس، قرآن پاک پڑھنے کے لیے پاک صاف یعنی باوضو ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہمارا باوضو یعنی کہ وضو ہمارا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 2، جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے. یعنی کہ جس جگہ پہ ہم لوگ قرآن پاک بیٹھ کے پڑھیں گے وہ ہماری جگہ بہت زیادہ پاک صاف ہو. نمبر 3، قرآن تلاوت سے قبل تعوذ اور تسمیہ پڑھنی چاہیے. جی اسٹوڈینٹس، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہم جو ہے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں گے.
नंबर 4, कुरान पाक को ठहर ठहर कर और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी कि जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी तिलावत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, कुरान करीम पढ़ने में जेर ज़बर पेश की बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जेर ज़बर के फ़र्क से मफहूम बदल जाता है। यानी कि जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान की जेर ज़बर जेर और पेश को बहुत एहतियात से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बदल दें तो इससे इसका तर्जुमा और मफहूम जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट, कुरान पाक की तिलावत के दौरान रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखा जाए, यानी कहाँ ठहरना है और कहाँ नहीं, यानी कि कहाँ पे इस तिलावत जब हम कुरान की आयत पढ़ते हैं वो कहाँ पे उस आयत का एंड होगा और कहाँ पे नहीं, यानी कि इन रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 है, कुरान पाक की तिलावत बुलंद और आहिस्ता दोनों आवाज़ों में की जा सकती है, लेकिन बुलंद आवाज़ से तिलावत करते वक्त ये देख लेना चाहिए कि इससे किसी को तकलीफ ना हो, यानी कि हम जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे आहिस्ता आवाज़ से भी कर सकते हैं और बुलंद आवाज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बुलंद आवाज़ से तिलावत करेंगे तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी को इससे तकलीफ ना हो। कुरान पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो दूसरे लोगों पर इसका सुनना और खामोश रहना लाजिम हो जाता है, यानी कि ये भी साथ बताया गया कि अगर हम बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो जो दूसरे लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खामोश रहें और इसकी तिलावत को सुने। नंबर 8 पे है, कुरान पाक को अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए। नंबर 9, अजान के वक्त कुरान पाक की तिलावत तर्क कर देनी चाहिए, यानी कि छोड़ देनी चाहिए। अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो अजान शुरू हो गई है तो हम क्या करेंगे कि कुरान पाक की तिलावत क्या कर देंगे, तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे। नंबर 10, कुरान को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको समझ कर पढ़ना और फिर इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। नंबर 10, तिलावत के बाद दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन अल्फाज में दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मेरी ज़ुबान तेरी किताब में से जो तिलावत करे मुझे तौफीक दे कि मैं इसमें गौर व फिक्र करूँ। ऐ अल्लाह, मुझे इसकी समझ दे, मुझे इसके मफ़हूम व मानी की मार्फत, यानी कि उसकी जान पहचान और उसके अजायबात को पाने की नज़र अता कर, और जब तक जिंदा रहूं मुझे तौफीक दे कि मैं इस पर अमल करता रहूं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, सीखने और सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यानी कि स्टूडेंट्स, जितने भी आदाब हैं हमें इस पे जो है अमल करना चाहिए कि कुरान पाक को किस तरह से है पढ़ा जा सकता है। मश्क है आप लोग के पास स्टूडेंट्स 101 पेज दर्ज ज़्यादा सवालात के जवाब लिखे हैं। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पूरी कीजिए। नंबर 1, कुरान का मौजू डैश है। सिर्फ हमसे पीछे पढ़ा कि कुरान पाक का मौजू सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसान है। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत के दौरान डैश का ख्याल रखा जाए, यानी कहाँ ठहरना है और कहाँ नहीं। तो किस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, रमूज़ औक़ाफ़ का। नंबर 3, तिलावत से कबल डैश और डैश पढ़नी चाहिए, तावुज़ और तस्मिया। कुरान पाक को डैश के सिवा कोई ना छुए, तो कौन नहीं छू सकता, पाक साफ लोगों के सिवा। लास्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। लफ्ज डैश के मायने हैं वो किताब जब सबसे ज्यादा पढ़ी जाए, तो कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाए, कुरान पाक। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नंबर 2, कुरान पाक कितने सालों में नाजिल हुआ, करीबन 23 साल में, करीबन 25 साल में, करीबन 27 साल में, करीबन 23 साल में। तो इसका दुरुस्त जवाब है करीबन 23 साल में। स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 102। कुरान अल्लाह की किताब है, पहली, दूसरी, आखिरी, तीसरी। इसका दुरुस्त जवाब है आखिरी। कुरान पाक के हर हर्फ पर कितनी नेकियां मिलती हैं, 5, 20, 10, 12। तो कितनी नेकियां मिलती हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। नेक्स्ट, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों के साथ मिलकर रहे, जदीद इल्म सीखे,
कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इसका दुरुस्त जवाब है कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नेक्स्ट, कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? इंसान ने, फरिश्ते ने, अंबिया ने, अल्लाह ताला ने। इसका दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला ने। लास्ट एमसीक्यूज, किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आती है? सूरतुल तौबा में, सूरतुल नमल में, सूरतुल कौसर में या सूरतुल बकरा में? तो दुरुस्त जवाब हमारे पास है सूरतुल नमल में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 103, कुरान के अदाब से मुतल्लिक फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। कुरान मजीद जो है वो क्या है? अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, पढ़ने के दौरान बातें ना करना, बावजू होकर पढ़ना, साफ पाक जगह पर बैठकर पढ़ना, तिलावत से कबल तावुज़ और तस्मिया पढ़ना। कुरान के कुरान के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करें और बताइए कुरान मजीद में कुरान के लिए मजीद कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? कोई से 2 लिखें। अल कुरान, अल किताब और अल फुरकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद में कुल कितनी मदनी सूरत हैं? तो कुल कितनी मदनी सूरत हैं? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद में कुल कितनी मक्की सूरतें हैं? और हमारे पास मक्की सूरतें हैं 82 यानी 82। कुरान मजीद में कितने आयात हैं? 6667। क्वेश्चन नंबर 5, कुरान मजीद में बहुत से अंबिया कराम का जिक्र आया, उनमें से कोई से 5 के नाम लिखें। उनमें से कोई से 5 के नाम हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी स्टूडेंट्स, नोटबुक की तरफ आते हैं। नोटबुक के सवालात हैं, मश्क सवालात, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, लफ्ज़ कुरान के क्या मायने हैं? हेडिंग बनाई हुई है लफ्ज़ कुरान के मायने। जी स्टूडेंट्स, लफ्ज़ कुरान के मायने हैं वो किताब जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाए। सवाल नंबर 2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बेहतर कौन है? हेडिंग बनाई हुई है स्टूडेंट्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बेहतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सवाल नंबर 3, कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? आयत का हवाला दें। हेडिंग इज कुरान की हिफाजत का जिम्मा। जी स्टूडेंट्स, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया। तर्जुमा, बिलाशुबा हमने कुरान उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुरान करीम की हिफाजत का कुरान पाक की तिलावत के 4 आदाब लिखें। कुरान पाक के तिलावत के 4 आदाब मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, तिलावत से कबल तावुज़ और तस्मिया पढ़नी चाहिए। नंबर 2, कुरान पाक को ठहर ठहर कर और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। कुरान पाक को अच्छे आवाज़ से पढ़ना चाहिए। एंड लास्ट इज, जिस जगह कुरान पाक पढ़ा जाए वो जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर आदाब तिलावत, notebook work and reading book work. Okay.